السلام علیکم، ٹیلر نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسیب خان اور میں ہوں رمشا شبیر۔ شامل کریں گے سب سے پہلے ڈسٹرکٹ نیوز ہیڈ لائنز۔ عمران خان کی نااہلی کے خلاف فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج، درخواست سماعت کے لیے مقرر، موقف اختیار کیا۔ الیکشن کمیشن کے پاس کرپٹ پریکٹسز نااہلی کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں، توشہ خانہ ریفرنس کیس کا فیصلہ کل عدم قرار دیا جائے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا تحریک انصاف کو چودھری پرویز الہی کا خیال رکھنے کا مشورہ۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، پی ٹی آئی والے پرویز الہی کا خیال رکھیں، کہیں اور نہ چلے جائیں۔ مارچ اپریل میں الیکشن کے لیے بیک ڈور رابطے کی خبر پروپیگنڈا ہے، 1.5-2 ماہ میں سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ گرے لسٹ سے نکلنے کا صحرا آرمی چیف اور عمران خان کے سر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا ٹویٹر پر پیغام، کہتے ہیں گرے لسٹ سے نکلنے کی کامیابی پوری قوم کی بہت بڑی فتح ہے۔ نون لیگ کے دور میں پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا، انہیں کامیابی کا کریڈٹ لیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ عمران خان کی نااہلی کے خلاف پی ٹی آئی کارکنان سڑکوں پر نکل آئے۔ فیصل آباد، گجرانوالہ، کاموکی، سانگلہ ہل، نارووال، کبیروالا، راجن پور، ہری پور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج، حکومت اور الیکشن کمیشن کے خلاف شدید نعرے بازی، ٹریفک کی روانی متاثر۔ غریب عوام کی مشکلات میں اضافہ، ملک بھر میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ، ٹماٹر، پیاز، چینی، دودھ سمیت 23 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ گئیں، جبکہ حالیہ ہفتے دال مسور، دال چنا، دال ماش اور دال مونگ کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ نارووال میں مرید کے پر تیز رفتار موٹر سائیکل کی گدا گاڑی کو ٹکر، موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق۔ کامران کا تعلق نواحی گاؤں خان خاصہ سے تھا، لاش گھر پہنچنے پر کوہرام برپا۔ قصور میں پولیس کا پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 3 ملزمان گرفتار، قبضے سے کثیر تعداد میں پتنگیں برآمد، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ قصور میں پولیس کی کارروائی، ڈکیت گینگ کا سرغنہ 3 ساتھیوں سمیت گرفتار، ملزمان کے قبضے سے نقدی، 5 موبائل فونز، 6 موٹر سائیکلیں اور اسلحہ برآمد۔ ملزمان مختلف علاقوں میں راہگیروں سے موٹر سائیکل، موبائل فون اور نقدی چھیننے کی وارداتیں کرتے تھے۔ اور T20 ورلڈ کپ میں پاک بھارت کا ٹاکرا کل ہوگا۔ میلبرن کے گراؤنڈ میں قومی ٹیم بابر اعظم کی سربراہی میں میدان میں اترے گی۔ دونوں ٹیمیں فتح کے لیے پر امید۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے شروع ہوگا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی نااہلی پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا ملک بھر میں احتجاج جاری ہے۔ فیصل آباد، گجرانوالہ، کاموکی، سانگلہ ہل، نارووال، کبیروالا، راجن پور، خانیوال، مردان، ہنگو، ہری پور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے احتجاج کیا ہے۔ کارکنوں کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا اور الیکشن کمیشن کے خلاف نعرے بازی کی۔ احتجاج کے باعث ملک کے مختلف شہروں میں اہم ترین شاہراہوں پر بدترین ٹریفک جام رہا، جس سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگنے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ ڈپٹی کمشنر بابر رحمان بڑائچ نے انسداد ڈینگی سرویلنس کے دوران شہر کے مختلف ہاٹ سپاٹس کا معائنہ کیا۔ فیکٹری میں ڈینگی لاروا کی افزائش ملنے پر فیکٹری مالکان کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ لودھرا شہر کے اس اہم وزٹ میں ڈپٹی کمشنر بابر رحمان کے ہمراہ ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر عثمان، ڈسٹرکٹ
एंटोनोलॉजिस्ट मोहम्मद जफर और दीगर अफसरान भी थे। डिप्टी कमिश्नर ने डेंगू लार्वा की तल्फी के लिए उठाए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया। दौरान विजिट मकामी पाइप फैक्ट्री से डेंगू लार्वा बरामद होने पर मालिकान को नोटिस जारी करने का भी हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि डेंगू सर्वेलेंस टीमों को मज़ीद मुतहरिक रहने की अशद ज़रूरत है। डिप्टी कमिश्नर ने इंसदाद डेंगू इकदाम के तहत मुख्तलिफ शादी हॉल्स का मुआयना भी किया और मुख्तलिफ जगहों पर खड़े साफ पानी को खुश्क ना करने पर इजहार बरहमी किया। उधर कबीरवाला में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से M4 पेट नंबर 22 में स्मोग और उससे आगाही के बारे में सेमिनार का इनेकाद किया गया। DIG शाहिद जावेद ने शजरकारी से आगाज़ किया। इस पर देखते हैं कबीरवाला से हमारे नुमाइंदे फिरोज लशारी की रिपोर्ट। इस खालिद महमूद के वीएन के मुताबिक DIG मोटरवे सेंट्रल जोन शाहिद जावेद और सेक्टर कमांडर M4 आतिफ अली की हिदायत पर स्मोग और फोग की आगाही के सिलसिला में बीट नंबर 22 में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सेक्टर कमांडर M5 राना इस्माइल, सेक्टर कमांडर नदीम अशरफ वड़ाइच, SP राना मोहम्मद अशरफ, कमांडर मोहम्मद हसन भट्टी और असिस्टेंट कमिश्नर आमिर इफ्तिखार समेत सिविल सोसाइटी के अफराद, मकामी ताजरों और सनतकारों के अलावा मकामी स्कूल के असातिज़ा, तुलबा और तालबात और पुलिस के अफसरान व जवानों ने भरपूर शिरकत की। मोटरवेज के साथ साथ और बाकी अपने कैंप एरियाज़ में, अपने साइट एरियाज़ में प्लांटेशन ड्राइव कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले फेज़ में हमने कोई तकरीबन 1000 के करीब पौधे लगाए हैं और उसके अलावा ये प्लांटेशन ड्राइव हमारी जारी रहेगी। दरख्तों को लगाएंगे, इस मुहिम में आगाही भी दे रहे हैं, लोगों को ब्रीफ भी कर रहे हैं, खुद भी हम इसका हिस्सा शामिल हो रहे हैं। इस मौका पर DIG शाहिद जावेद ने सेमिनार के शुरका और रोड यूजर और निजी कंपनी की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज करके पौधा लगाते हुए कहा कि दरख्त लगाना सदकाए जारिया है और दरख्त फिजाई आलूदगी के खात्मे और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने में अहम किरदार अदा करते हैं। फोग उसके बारे में आगाही देना थी और साथ ही प्लांटेशन पे जोर दिया गया। तो हमने इन्होंने जो अपनी प्लांटेशन की हुई थी, हमारे पूरे स्कूल के बच्चों को वहाँ पे विजिट करवाया। मोटरवे वालों ने प्लांटेशन की है। ये जो प्लांट होते हैं, हमने इनको बहुत अप्रिशिएट किया है क्योंकि प्लांट आलूदगी ख़त्म करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी को ख़त्म करने के लिए बहुत से पौधे लगाए गए हैं। हमें भी चाहिए कि हम फ़िज़ा को साफ़ सुथरा करने के लिए यहाँ बहुत से पौधे लगाएं जिससे हवा साफ़ सुथरी। और पौधे ऑक्सीजन फराहम करने के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में कमी और परिंदों और जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को भी पूरा करते हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि खानेवाल में वर्ल्ड पोलियो डे पर ज़िले इंतज़ामिया और महकमा सेहत के ज़ेर एहतमाम सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। सेमिनार और वॉक में डिप्टी कमिश्नर उमर इफ्तिखार शराजी, असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्ला, CEO हेल्थ डॉक्टर अब्दुल मजीद, महकमा सेहत, दीगर सरकारी महकमों, सिविल सोसाइटी की शख्सियात ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने सेमिनार में ज़िला खानेवाल को पोलियो फ्री रखने के लिए इकदाम जारी रखने पर जोर दिया और कहा कि इंसदाद पोलियो के अहदाफ को हसूल तमाम तबकों की शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं। पोलियो वायरस से पाक दुनिया हमारे बच्चों के लिए महफूज दुनिया है। वालिदैन और सिविल सोसाइटी मुल्क को पोलियो फ्री बनाने के लिए हुकूमत का साथ दें। आलमी दिन पर इस बात का अहद किया जाए कि सब मिलकर मुल्क से मूजी वायरस का नामो निशान मिटा सकें। दूसरी जानिब सहवन शरीफ में सैलाबी सूरत हाल के बाद हज़ारों कच्चे पक्के घर और मकानात ज़मीन बोस हो गए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से घर घर सर्वे का आगाज़ हो गया है। सहवन शरीफ में मुसलसल बारिशों के बाद सैलाब से होने वाले तबाहकारियों पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से घर घर सर्वे का आगाज़ किया गया है, जिस सर्वे में 22 से ज़ायद टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनमें पाक फ़ौज के जवान, असातिज़ा, UC सेक्रेटरी और रेवेन्यू के अमलदारात शामिल हैं। सर्वे में तमाम मुतासरा इलाकों में लोगों के घरों और मकानात के नुकसान का इंदराज करके ऑनलाइन डेटा मुरतब किया जा रहा है। सैलाब से मुतासरा इलाकों समेत तहसील सहवन के तमाम वार्ड्स और टाउनों में भी कमेटी भान, सईदाबाद के तमाम वार्ड्स और इलाकों में नुकसानात का जायजा लेने के बाद तस्वीर और असल कौमी शनाख्ती कार्ड के साथ मुकम्मल फैमिली मेंबर्स की दाखिला की जा रही है। उधर बिहाड़ी में गंदम की काश्त का सिलसिला जारी है। महकमा ज़राअत गंदम की काश्त और पैदावार में इजाफे के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पंजाब में 1 करोड़ 65 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर गंदम काश्त करने के लिए महकमा ज़राअत की सरगर्मियाँ जारी हैं ताकि गंदम में खुद कफालत के हसूल को यकीनी बनाया जा सके। इमसाल सूबा में गंदम के 2 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन के पैदावारी हदफ को यकीनी बनाया जाएगा। कौमी मनसूबा के तहत 12 अरब 59 करोड़ रुपए की लागत से गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए काश्तकारों को गंदम की मंजूर शुदा अक़साम के बीज और दीगर ज़रई मदाखिल सब्सिडी पर फराहम की जा रहे हैं।
माली साल 2022-23 के दौरान इस मंसूबे के तहत गंदम की मशी काश्त के फ़रोग़ के लिए 50% सब्सिडी पर जदीद ज़री मशीनरी फराहम की जा रही है। दूसरी जानिब मियां चन्नू प्रेस क्लब रजिस्टर्ड मियां चन्नू के ज़ेर तमाम 5वीं सालाना महफिल मिलाद इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। बाबरकत महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से किया गया, जिसकी सआदत क़ारी अब्दुर्रहमान ने हासिल की, जबकि हाजी मंजूर अहमद साहबजादे, गुलाम फरीद मदनी और सैयद ज़ुबैर आबिद शाह ने बारगाह रिसालत में अक़ीदत के फूल निछावर किए और क़ारी शहजाद अहमद ने अपने खिताब में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सैर हासिल गुफ्तगू की, जबकि नक़ाबत के फ़राइज़ मोहम्मद शहबाज बज़मी, जनरल सेक्रेटरी मियां चन्नू प्रेस क्लब ने अदा किए। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू चौधरी रमीज़ ज़फ़र और DSP मियां चन्नू नासिर अली साकिब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें टैलेंट न्यूज़।